So hi guys, welcome back to channel. My name is Javir Malik, and today we'll be talking about the CVT PG chemistry examination, that is for the subject code SCQP08 for the admission to the various MSc chemistry courses at the central universities in India. So for this year 2026, the exam is scheduled to be held on 11th of March 2026 in the evening shift, that is the third shift from 4 to 5:30 p.m. Basically, as you already know, that the exam is going to be of 1 hour 30 minutes, and there are going to be 75 questions that will be asked to you, amounting to a total of 300 marks with a plus 4 minus 1 marking scheme. So, talking about myself, last year in 2025, I secured ordinary rank 9 with 180 marks out of 300 in the same SAQP08 paper, and I was selected for admission to the MSc Chemistry program at JNU. So, in this video, we'll be talking about majorly the last minute approach and some tips for you for the examination to maximize your score as per your preparation standard. Okay. So, as you all must have filled the form if you're watching this video. So, like I would like to give you 4 or 5 small tips from my side that I followed in the last year that helped me boost my score without any specific preparation for the CUT examination per se. So, firstly, I would like to address the candidates, those who have appeared for the IT JAM chemistry examination. You guys must have checked your scores till now, and you might be like you must have guessed as to which IIT or what rank you'll be getting, and what IIT you'll be getting at that particular rank. So, irrespective of the rank that you're getting, if you have filled the form for this examination, I would like to advise you and sincerely request you that you go and appear for the examination. Okay, examination में appear होना is the main thing that we need to do at this point of time. God forbid अगर हमारा score fluctuate होता है due to some questions that getting dropped or anything, if the rank versus mark shoots up or whatsoever. Basically, CUET PG examination is a good opportunity for you to apply your knowledge that you have gained through this journey, this JAM preparation journey. Okay, and trust me when I'm saying this, this JAM examination is a comparatively harder examination as compared to the CUET PG examination. Okay, there are basically 75 questions in this examination that you need to attempt in within 1 hour 30 minutes. So basically you are getting 90 minutes for attempting 75 questions. So a little more than 1 minute for each question. Okay. And as such, there is no specific preparation that is required for the CUET PG examination. Only the JAM syllabus needs to be revised, as I suggest in the further part of this video. You need to just go through the topics that you've already read and go and appear in the examination. So the next point that is from my side is that you should firstly go and revise your short notes. I had earlier also advised you to make some short notes for the JAM examination. If you have not, then you can revise your full long notes that you have made for the IIT JAM or you, maybe your BSc notes also. I am now. I would like to talk about the students, those who have not appeared in the JAM examination. Okay, so if you're not appeared in the JAM examination and you're aspiring for the CUET PG examination only, so like you must have prepared for the CUET PG examination. Okay, you must have taken some coaching, or you must be preparing from your BSc notes only. So try to consolidate those notes and revise those notes to the maximum extent that you can do by the end of 10th. Okay, just revise them, the important formulas for physical chemistry. Like you should have the formulas on your fingertips. Okay, so as I told you earlier that there is a little more than 1 minute for each question. You need to read the question, you need to solve the question also, you need to mark the question also. Okay, so you have around 1 minute for each question, and then you'll go through the paper also at the end. So take 1 minute for each question as the allotted time. Okay, so the best strategy for this examination is that you should have the all the formulas on your fingertips. Formulas अगर fingertips पे होंगे तो हम आराम से वहाँ पे बैठे बैठे will not be needing to derive those formulas or those steps that are unnecessary, that will basically waste your time in the examination. Okay,
नेक्स्ट इन द फिजिकल आप पहले तो फॉर्मूलेज अपनी रिवाइज कर लो सारे, ठीक है। इलेक्ट्रो हो गया, काइनेटिक्स हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो रेट कई बार तो रेट लॉस वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। क्वांटम में जो आपको मैंने जैसे उसमें बताया था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आईटी के लिए, आईटी जैम के लिए, आई लिंक द वीडियो ऑल्सो। एंड नेक्स्ट क्वांटम के अंदर जो आपके बेसिक फॉर्मूलेज सारे जो आपको एकदम मतलब बेसिकली द CUTPG एग्जामिनेशन टेस्ट योर basic skills, okay, the basic knowledge that you have. There is no need for detailed or in-depth knowledge in the examination, okay. सो फर्स्टली आप फिजिकल में सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लोगे, ठीक है। नॉर्मल जो एकदम रिजल्ट्स जो हमारे पास आते हैं निकल कर कि हाफ लाइफ के होता है 0.693 अपॉन के जो मतलब लाइक जो ln2 के आता है हमारे उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। तो सिमिलरली हर चैप्टर में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने मतलब आपको मदद करेगा एग्जाम में, आपको देखते से क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें, ओके। एंड ऑर्गेनिक के अंदर जो हमारी बेसिक रिएजेंट्स होते हैं कि यार सारे रिएजेंट्स आपने एक बार देख लिए, स्टीरियो आपने एक बार देख लिया, एरोमेटिक कौन कौन से कंपाउंड होते कि नहीं होते, क्वेश्चन हर बार आते ही आता है। 4 नंबर आपको पेपर जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो। सिमिलरली पूरे सिलेबस के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप सिर्फ देख जाओगे, एक बार ग्लैंस दे जाओगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ यार मेरे से क्वेश्चन देख के बन रहा है। अदरवाइज़ अगर आपने ढंग से इसको रिवाइज नहीं किया तो क्या दिक्कत आती है एग्जाम में कि आप बोलोगे कि यार क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तो मैं इन्वेंट कर पा रहा हूँ पर 2 ऑप्शन को कन्फ्यूजन हो रही है। हमको अगर वो दिक्कत नहीं चाहिए एग्ज़ाम में तो हम क्या करेंगे, हम बैठ के एक बार ना सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे 2 दिन के अंदर, आराम से हमारे पेपर में स्कोर अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा, ओके। इनऑर्गेनिक के अंदर जो आपने OMC और कोऑर्डिनेशन के अंदर जो आपके बेसिक मतलब होते हैं, लाइक जो आपका मतलब वेरिएंस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा हो गया, OMC के अंदर मतलब 18 काउंट कहाँ पे फुलफिल होता, कहाँ पे नहीं फुलफिल होता, मेटल मेटल बॉन्ड क्या हो गए, और मेन ग्रुप के अंदर जो कैरो और मार्शल एसिड होता है जो मतलब सोडियम जो सॉरी सल्फर और फॉस्फोरस के जो एसिड होते हैं, हमको वो याद रखना है जो एकदम मतलब देखते से पूछता है वो, ओके। उसके बाद हम जो मेटल कार्बोनिल होता है उसके जो ट्रेंड होता है OMC के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर भाई मतलब क्या क्या जॉइंट एंड डिस्टॉर्शन किस में हो रही है किस में नहीं हो रही, T2D अनसिमेट्रिकल, AG अनसिमेट्रिकल, जो मतलब जो बेसिक आप अगर एक बार अपने बेसिक पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ओके। दिस वॉज अबाउट द सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर द CUTPG एग्जामिनेशन, लास्ट एग्जाम पे क्या करना चाहिए। तीसरा आता है पेपर अटेम्प्टिंग। आपके पास 1.5 घंटा है, आपके पास 90 मिनट है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 70। अब आप इसमें कैसे अप्रोच करोगे, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन फटाफट से देखना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन पे आपको बहुत टाइम नहीं देना है। कोई क्वेश्चन की अगर आपको लग रहा है कि यार अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है तो वहाँ पे उसको उस समय लीव कर दो, बाद में वापस आ सकते हो अगर आप पूरा पेपर एक बार देख पाओ तो। कई बार क्या होता है दैट हैपन टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, जो उनको बता रहे थे बाद में कि यार पेपर पूरा देख ही नहीं पाए। पेपर में मतलब क्वेश्चंस आर डूएबल, आई एम अगेन टेलिंग यू कि अगर आपका 300 नंबर का पेपर है आपके आराम से 160 170 प्लस आराम से आ सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डूएबल क्योंकि वहाँ पे लाइक आप खुद देखो, अगर लाइक दो टॉपर लास्ट टाइम लिस्ट आई थी जो मतलब एक अनऑफिशियल लिस्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग 210-15 नंबर पे कुछ टॉपर था, आई एम नॉट श्योर, बस 210 220 से कम भी टॉपर था। सो अगर रैंक 1 220 पे आ रही है एंड आपको अगर इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर टॉप 10 टॉप 15 रैंक्स, आपका आई थिंक सो 150 के ऊपर एक अच्छा स्कोर रहता है, ठीक है। आपको अगर टॉप 10 टॉप 15 रैंक लानी है तो अगर आप 200 तक भी स्कोर लेके चलते हो तो यू नीड टू जस्ट अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो अगर आपने एक बार बेसिक जो आपको मैं बताया कि आपको सिलेबस कैसे रिवाइज करना है, रिवाइज कर लो सिलेबस को, ठीक है, आराम से। और फॉर्मूले स्टेप्स में होने चाहिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों का आपको मतलब सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर ऑल्सो एक और चीज़, ऑर्गेनिक के अंदर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और पेरिसाइक्लिक, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनमें से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ये आप इंडिपेंडेंटली विदाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म एंड द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स रिएजेंट्स वाला जो पार्ट आता है आपने उसको नहीं कवर कर रखा तब भी आप इन चैप्टर के ऊपर देख सकते हो, ओके। सो हाँ, कमिंग बैक टू टॉपिक, हमको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, हम जाएंगे स्टार्ट करेंगे। यू कैन स्टार्ट मतलब आप एकदम पेपर देना स्टार्ट करो, ठीक है। जो आपको लग रहा है क्वेश्चन हो रहा है तो उसको करो, नहीं हो रहा है तो नहीं करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वहाँ पर डर जाते हैं जिससे आपको टाइम वेस्ट हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपको अपना आराम से हर क्वेश्चन के ऊपर 1 बाय 1 क्वेश्चन के ऊपर जाना है। क्वेश्चन देखा हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, ठीक है, सिंपल।
ठीक है, आप एक क्वेश्चन को एक बार में देख करके एंड यू जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आपको लग रहा है कि आपको इसमें डाउट लग रहा है तो आप उसको रिव्यू मार करके आप आगे चले जाओ। ठीक है, आपको ऑल इन ऑल अगर आपको अटेम्प्ट करने की मतलब लाइक इफ़ यू थिंक कि आप 50 से ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर इट, बट अकॉर्डिंग टू माई सजेशन जो मैं सजेशन दूंगा कि यार आप ना मतलब 50 का टारगेट रखो, 50 क्वेश्चन करके आने मेरे को, बट 50 में से मैक्सिमम सी होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर देना इज़ नॉट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो यहाँ पे शांति से गए, ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और 50 के आसपास अगर आपने अच्छे मतलब अगर आपने सही अटैम्प्ट करे आपके अकॉर्डिंग, तुक्का नहीं लगाया। तुक्का लगाना इज़ नॉट द मतलब थिंग आई वुड रिकमेंड। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर इसके आसपास जा रहा है तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप आप अपने एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग सेफ स्कोर पे हो, और सेफ को बताता हूँ मैं, सेफ स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जनरल के लिए अगर आपके 180 190 नंबर हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, तो आप जनरल में या आप ऑर्डिनरी रैंक आपकी 10 के अंडर आ जाएगी। ठीक है, इफ़ यू एस्पायरिंग फॉर JNU आपके मतलब अच्छा स्कोर रहता है, अगर आप टॉप 10 में हैं तो आपको JNU मिल सकता है। मेरी ऑर्डिनरी रैंक 9 थी एंड जिन्होंने JNU अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग मेरी ऑर्डिनरी रैंक 6 थी। I got the offer for MSc Chemistry at JNU in the first list itself, but I declined it due to admission at IIT. Okay. एंड नेक्स्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका जैम का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, ओके, सो मतलब आई टॉक टू सम ऑफ माई जूनियर्स दोज हु हैव गिवन द एग्जामिनेशन, द जैम एग्जामिनेशन, दे आर सेइंग दैट उनका एग्ज़ाम उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं हुआ। ओके, सो वहाँ पे अगर हम वो सोच करके हमारा ये अगर इसका एग्ज़ाम CUET PG का एग्ज़ाम ख़राब करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छी मतलब कोई स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम इससे इंडिपेंडेंट है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि CUET PG का जो एग्ज़ाम होगा ना उसके क्वेश्चंस विल बी वेरी 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 इजी एज़ कम्पेयर टू द IIT जैम एग्जामिनेशन। कुछ क्वेश्चन आपके देखते बन रहे होंगे, आपको लाइक सोचना भी नहीं पड़ेगा, या आप मतलब एक क्वेश्चन पढ़ के बोलेगा कि इसका आंसर तो ये होगा। ठीक है, तो जैम से कम्पेयर्ड एग्ज़ाम बहुत ईजी है। ठीक है, ये इसको उतना ही ईजी एग्ज़ाम की तरफ लो। ठीक है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं है। इस एग्ज़ाम के अंदर आराम से जाओ, एग्ज़ाम का पेपर अटैम्प्ट करो, जितना आ रहा है उतना करके बाहर आ जाओ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अच्छे से एग्ज़ाम करके आओ। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज़ कर लो और उसके बाद क्वेश्चन पेपर शांति से पढ़ना, शांति से अटैम्प्ट करना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।